Good morning, students. Today we will go through the remaining portions of Earth, Sun and Moon. तो अर्थ, सन एंड मून का जो रेस्ट पोर्शन है उसको एक क्लास में कवर करेंगे. आई हैव ऑलरेडी explained this through Google Meet class. However, since some of you have not joined, I have to take the video once again for all of you. Okay. So this may be a revision for you, right? So we have read Earth, Sun and Moon. So this is a part of Moon, eclipse. Okay. So lunar eclipse happened due to Moon. Okay. As the name indicates, lunar eclipse means eclipse due to Moon. So the Sun is the source of light, whereas Earth and the Moon are opaque objects made of solid rocks. Earth and this Moon is the natural satellite of Earth, right? Most of the planets are having one or more than moon, okay? And this is the Moon is our natural satellite, and both Moon as well as the Earth are opaque object. Opaque matlab not transparent, opposite of transparent, opaque. Okay, that means it is made up of solid rocks. Both Earth and Moon are made up of solid rocks. So when we see the full moon in the night, we see the dark spots in the moon. What are those dark spots? They are the pictures of hills or mountains. Okay, rocks. So moon as well as earth are having solid rocks. That's why they are not transparent. They are opaque. Okay. Whereas sun is transparent because it is filled with hydrogen and helium gas. It emits heat and light. So it is not opaque. When earth and the moon comes in the way of sun's light, when both earth and moon comes on the way of sunlight, why? Because earth is moving around sun and moon is moving around earth. So in this movement, at a certain particular time, when earth and moon both come in the way of sun's light, sun का light आ रहा है, तो earth और moon दोनों अगर एक लाइन में आ जाते हैं, they block the light and cast a shadow. वो sun का light को block कर देते हैं, एक shadow cast करते हैं. And this event is called an eclipse. ठीक है, इसको eclipse बोलते हैं. जो हमको मालूम है, हम बोलते हैं ये क्या हुआ, ये लूनर एक्लिप्स हुआ, ये सोलर एक्लिप्स हुआ. जो सोलर एक्लिप्स उसको सूर्य पराग बोलते हैं एंड लूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण बोलते हैं. ठीक है. सो दिस लूनर एक्लिप्स, व्हाट इज एक्चुअली दिस, लेट अस स्टडी इन डिटेल्स. A lunar eclipse occurs on a full moon night when the earth comes between the sun and the moon. पूर्णिमा की रात में, फुल मून नाइट में लूनर एक्लिप्स होता है. कब होता है? फुल मून नाइट में. कब एंड क्यों होता है? बिकॉज अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून. यहाँ पे देखो, अर्थ आ जाता है, सन और मून का अर्थ आ जाता है सन साउथ और मून का बीच में. सो लूनर एक्लिप्स occurs on a full moon night when earth comes between sun and the moon. So when in any full moon night, if earth and sun comes between, if sun and moon comes, when earth comes between sun and moon, then they are in a straight line. You see here, this is your sun, the yellow spherical
subject is sun. This bluish spherical subject is earth and whitish spherical subject is moon. So this is the tiny spherical picture. It is the picture of moon, this is the picture of earth, and this is the picture of sun. And these three heavenly bodies come in a straight line. If you draw a line, it is in a straight line. So when this this happens on a full moon night. So this is moon in a full moon night, and earth is here. Earth is revolving around the sun like this, and moon is revolving around the earth like this. So जब फुल मून नाइट में ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में रह जाता है, देन अर्थ विल ब्लॉक द लाइट फ्रॉम रीचिंग द मून. मून में पहुंचने के लिए अर्थ ब्लॉक कर देगा सन का लाइट को. तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, द अर्थ कास्ट ए शैडो ऑन द मून. तो अर्थ सन का फ्रंट में रहने से ये ब्लॉक करेगा सन का रे को, सन का लाइट को. देन अर्थ का शैडो गिरेगा कहाँ, मून का ऊपर. मून में गिरने से क्या होगा, ये एक्लिप्स होगा. उसको क्या बोलेंगे, लूनार एक्लिप्स बोलेंगे. ठीक है. व्हेन द मून इज कंप्लीटली इन द शैडो ऑफ अर्थ, इट इज कॉल्ड टोटल लूनार एक्लिप्स. ये लूनार एक्लिप्स भी दो भाग में विभक्त है. एक टोटल लूनार एक्लिप्स, अनदर पार्शियल लूनार एक्लिप्स. मींस तो टोटल लूनार एक्लिप्स क्या है, when the moon is completely in the shadow of earth. अर्थ का पूरा शैडो में रह जाएगा, तो पूरा अंधेरा छा जाएगा, मून दिखाई नहीं देगा. then this is called the total lunar eclipse. as the moon revolves around earth, अर्थ का चारों ओर रिवॉल्व करता है. it moves away sometimes and only a part of it is hidden by the shadow. तो जब ये अर्थ का चारों ओर घूमता है, कभी कभी ये इधर इधर नहीं तो इधर रह जाता है, तो पार्ट ऑफ अर्थ विल फॉल ऑन मून. एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच पार्शियल लूनर एक्लिप्स विल बी हैपन. ठीक है. ये इन्फोबिट में क्या लिखा है, द लॉन्गेस्ट सोलर एक्लिप्स दैट कुड बी सीन फ्रॉम अर्थ लास्टेड अबाउट 7.5 मिनट्स. आज तक सबसे लंबा सोलर एक्लिप्स जो कि अर्थ में से देखा गया, वो लास्ट किया था 7.5 मिनट. राइट. तो अभी लूनर एक्लिप्स के बारे में हम पढ़े हैं. तो एक्लिप्स क्या है, व्हेन सन, अर्थ एंड मून stay in a straight line. Then as you know, earth and moon are made up of solid rocks, so they are opaque objects, whereas sun is transparent due to the presence of hydrogen and helium gas, and which emits light and heat. Then when both earth and moon are moving, so earth is moving around sun, whereas moon is moving around earth. So due to their movement, sometimes what happens in a full moon night, sun, earth and moon, they stay in a straight line like this picture. Look at this picture, figure 12.6. So in this time, the sun's light cannot reach to moon because earth will block and earth will have a shadow of its own on moon, as a result of which lunar eclipse will happen. And when the moon is completely in the shadow of earth, it is called total lunar eclipse. And as you know, the moon is moving around earth, so when some part of earth only fall, some shadow of earth only fall on moon, and that part will be hidden, and that is called partial lunar eclipse. Next, solar eclipse. Now we will study about solar eclipse. So a solar eclipse occurs when the moon comes between the earth and the sun. Just reverse. यहाँ पे मून बीच में आ गया, अर्थ बीच में आने से सन एंड मून का देन
लूनर एक्लिप्स होता है। बट सोलर एक्लिप्स कब होता है? जब मून अर्थ और सन का बीच में आ जाता है। यहाँ पे देखो, सोलर एक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन अर्थ एंड द सन। यहाँ पे मून देखो, मून बीच में है, सन इधर है, सॉरी इधर है, एंड अर्थ इधर है। ओके, सो ए सोलर एक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द मून and when the moon comes between earth and sun। यहाँ पे मून इन दोनों का बीच में आता है। ठीक है, तो if they are in a straight line, the moon will block क्या है? स्ट्रेट लाइन होने से मून विल ब्लॉक द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग अर्थ। अर्थ से जो सनलाइट आता है तो मून ब्लॉक कर देगा। तो फिर दे आर इन ए स्ट्रेट लाइन, द मून विल ब्लॉक द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग अर्थ। तो इन अदर वर्ड्स, द मून कास्ट ए शैडो ऑन अर्थ। मून क्या करेगा? इस अर्थ में शैडो गिराएगा, जिसका चलते ड्यू टू दैट शैडो वी कैनॉट सी सन। सो if they are in a straight line, the moon will block out the straight line from reaching sunlight from reaching the earth। तो मून क्या करेगा? ये सन का जो लाइट अर्थ में नहीं पहुंचा पाएगा, ये ब्लॉक करेगा, क्योंकि ये जो इसका मून का शैडो अर्थ में गिरेगा। तो इन अदर वर्ड्स, द मून कास्ट ए शैडो ऑन अर्थ कॉजिंग ए सोलर एक्लिप्स। तो मून का जो शैडो अर्थ में गिरेगा वो उससे सनलाइट होगा। ठीक है, उससे सनलाइट होगा। तो उससे सनलाइट होता है। अच्छा, अभी देखो, causing a solar eclipse, if the sun is completely hidden, it is called total lunar eclipse, total solar eclipse। Like total lunar eclipse, if we get the total shadow of moon, then we cannot see the sun completely, and this is called total solar eclipse। If the sun is only partially hidden, then it is called partial solar eclipse। That means if the sun is completely hidden due to the full shadow of moon, then it is called total solar eclipse। If the sun is partially hidden due to the partial shadow of moon, then it is called partial solar eclipse। Clear? तो जैसे completely shadow गिरेगा मून का, then ये completely hide हो जाएगा, then this is called total solar eclipse। Whereas अगर partially shadow गिरेगा तो partial solar eclipse। नेक्स्ट, ह्यूमन्स ऑन द मून। मून में ह्यूमन्स कब पहुंचे? ह्यूमन मीन्स हम लोग का अंदर कौन पहले अपना स्टेप दिए थे, पहले मून में गए थे, उसका बारे में यहाँ लिखा है। पीपुल हैव ऑब्जर्व द मून सिंस एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट टाइम्स मीन्स पुरातन समय से आदमी लोग मून को ऑब्जर्व करते थे, प्राचीन काल से। पीपुल यू ऑब्जर्व मून इन द 1600s। द इन्वेंशन ऑफ द टेलीस्कोप अलाउड पीपुल टू स्टडी द मून मोर क्लोजली। 1600 शताब्दी में टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ और उस दौरान मून और दूसरा प्लैनेट्स को स्टडी करने का अवसर मिला है। ऑन 21 जुलाई 1969 द अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 लैंडेड ऑन द मून।
मून में पहला दफा 21 जुलाई 1969 में अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट नाम है अपोलो 11, वो क्या हुआ, वो लैंड किया था 1600 शताब्दी में। अमेरिका का एक स्पेस क्राफ्ट जो कि स्पेस में घूमता है, महाकाश यान उसको बोलते हैं, वो लैंड किया था 21 जुलाई 1969 में। इट वॉज ए हिस्टोरिकल डे फॉर मैनकाइंड, मानव जाति के लिए एक हिस्टोरिकल डे था। क्यों? नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून फॉलोड बाय एडविन एल्ड्रिन। वहाँ पे कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। वन आफ्टर अनदर these two astronomers stepped their foot on the moon. First Neil Armstrong landed on moon, followed by एडविन एल्ड्रिन। उनका बाद एडविन एल्ड्रिन मून में पा दिए। तो ये दोनों स्पेसक्राफ्ट में आके, ये दोनों स्पेसक्राफ्ट में आए। अपोलो 11 अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट, दोनों बड़ा साइंटिस्ट और स्पेस रिसर्चर, एस्ट्रोनॉमर, व्हाट्स नॉट, both of them have come through American spacecraft Apollo 11, and first Neil Armstrong stepped his foot on moon. Thereafter Edwin Aldrin landed on moon. So through Apollo 11, which is a spacecraft, on 21st July 1969, both of them, both Neil Armstrong first and thereafter Edwin Aldrin, stepped their foot on moon for the first time. So it is a history in mankind that men could able to reach moon. Michael Collins remained in the spacecraft that orbited the moon. There, in that time, what was happening? The spacecraft Apollo 11 was orbiting around the moon. मून का चारों ओर घूम रहा था, और उसका अंदर कौन थे? माइकल कोलिंस थे। क्योंकि सब कोई तो नहीं जा पाएंगे मून का ऊपर, क्योंकि उसको स्पेसक्राफ्ट का अंदर भी कोई होना चाहिए। तो माइकल कोलिंस वो स्टेप नहीं किए थे, वो स्पेसक्राफ्ट का चारों तरफ, मून का चारों तरफ स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 में बैठ के घूम रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, माइकल कोलिंस रिमेन इन द स्पेसक्राफ्ट दैट ऑर्बिटेड द मून। मून का चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा था, घूम रहा था माइकल कोलिंस, इसीलिए वो स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 का अंदर थे। व्हेयरएज इसका मतलब माइकल कोलिंस, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन, ये तीनों स्पेसक्राफ्ट में गए थे। इसमें से दोनों मून में अपना पा दिए और ये उस स्पेसक्राफ्ट में रहे। They collected samples of rock and dust to study more about moon. ये सब, ये तीनों क्या किए? रॉक्स और सैंड्स ये सब कलेक्ट किए फॉर मोर रिसर्च अबाउट मून। मून का बारे में रिसर्च करने के लिए, क्लोजली ऑब्जर्व करने के लिए अबाउट मून, ये क्या किए? सैंपल्स ऑफ रॉक एंड डस्ट कलेक्ट किए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन, जो कि मून में पा दिए थे, मून में लैंड किए थे स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 का दौरान, वो कलेक्ट किए रॉक्स और डस्ट फ्रॉम द मून। एंड माइकल कोलिंस, जो कि स्पेसक्राफ्ट अंदर में थे, वो मून का चारों ओर प्रदक्षिण कर रहे थे या घूम रहे थे। Then satellites. A satellite is a small object that revolves around a larger object in space. Satellite क्या है? Satellite small object, जो कि satellite small object थे, जो कि revolves around a larger object in space. स्पेस मतलब महाकाश। महाकाश, वहाँ पे चारों ओर खाली शून्य है, वहाँ कोई बड़ा जागतिक वस्तु
का चारों ओर, हेवनली बॉडी का चारों ओर अगर छोटा एक ऑब्जेक्ट घूमेगा उसको हम सैटेलाइट बोलेंगे। तो जैसे कि मून का चारों ओर ये सैटेलाइट था, स्पेसक्राफ्ट था अपोलो 11। और सैटेलाइट क्या है, वैसे जैसे कि मून घूमता है, बिगर ऑब्जेक्ट, अर्थ इज ए बिगर ऑब्जेक्ट, मून इज ए स्मॉलर ऑब्जेक्ट, बोथ आर ओपेक ऑब्जेक्ट। सो बिगर ऑब्जेक्ट का चारों ओर कौन घूमता है, मून, तो मून इज ए सैटेलाइट, बट इट इज ए नेचुरल सैटेलाइट। सिमिलरली वी हैव मीन्स ह्यूमन बीइंग्स हैव डेवलप्ड artificial satellites. So satellite is a small object that revolves around a bigger object. This is clear. Satellites can be natural or artificial. ये नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। जो मैन मेड है दैट इज आर्टिफिशियल, और जो मैन मेड नहीं है दैट इज नेचुरल। तो पहले नेचुरल सैटेलाइट्स में क्या है, ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड वेनस, मर्क्यूरी एंड वेनस को छोड़ देने से बाकी ये 4 प्लैनेट्स का नेचुरल सैटेलाइट्स है। तो किसका रहता है नेचुरल सैटेलाइट, प्लैनेट्स का रहता है। 100 प्लैनेट्स का नेचुरल सैटेलाइट रहता है क्या, नहीं। किसका नहीं रहता है, मर्क्यूरी एंड वेनस। बाकी जितना जो 6 प्लैनेट्स है वो सबका नेचुरल सैटेलाइट्स है। अर्थ का भी है नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ का मून होता है नेचुरल सैटेलाइट, एंड दिस इज द ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट है जो कि मून। देन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, देखो आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये पिक्चर जो लिया गया ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे ये एक सैटेलाइट है, ये छोटा सा जान है, ये घूम रहा है अपना ऑर्बिट में। तो ऐसे चांद के चारों ओर भी सैटेलाइट्स घूम सकता है, अर्थ का चारों ओर घूम सकता है, दूसरा प्लैनेट का चारों ओर भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूम सकता है। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मैन-मेड, दे आर सेंट इनटू स्पेस टू गैदर इंफॉर्मेशन। स्पेस या यानी महाकाश को ये सैटेलाइट भेजा जाता है साइंटिस्ट का द्वारा। ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाया जाता है इसको भेजा जाता है टू गैदर इंफॉर्मेशन, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। किसके बारे में, वेदर, कम्युनिकेशन एंड साइंस। बेस्ड ऑन these names there are basically broadly 3 types of artificial satellites। क्या, वेदर सैटेलाइट्स, वेदर का बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जो सैटेलाइट हम लोग भेजते हैं उसको वेदर सैटेलाइट बोलते हैं। यहाँ पे देखो, दीज आर यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग वेदर, वेदर को फोरकास्ट करने के लिए मेटीरियोलॉजिकली डिपार्टमेंट रहता है। मेटीरियोलॉजिकली डिपार्टमेंट क्या है, वेदर के बारे में हमको इंफॉर्मेशन या जानकारी देता है। सो वेदर को फोरकास्ट करने के लिए वेदर सैटेलाइट यूज होता है। They take pictures of ocean currents and movements of clouds। ओशन करंट एंड क्लाउड का मूवमेंट का बारे में ये सैटेलाइट क्या करता है, पिक्चर लेता है। They take pictures with this weather satellite take pictures of ocean current, ओशन करंट का पिक्चर लेते हैं, मूवमेंट्स ऑफ क्लाउड्स का पिक्चर लेते हैं, जो क्लाउड्स स्पेस में है उसका पिक्चर लेते हैं, और ओशन करंट का पिक्चर लेते हैं। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टडीज देम एंड फोरकास्ट वेदर। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये जो वेदर सैटेलाइट को स्टडी करता है, और इट ऑल्सो वांट्स पीपल अबाउट फ्लड्स, स्टॉर्म, साइक्लोन्स, फॉरेस्ट फायर्स एंड मूविंग ग्लेशियर्स। ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है ये वेदर सैटेलाइट को स्टडी करता है। स्टडी किससे करता है, ये जो लेता है फोटो टाइड का, क्लाउड का, वो फोटो दौरान ये स्टडी करता है कि क्या फ्लड होगा या स्टॉर्म होगा या साइक्लोन्स होगा। फ्लड माने बन्या, स्टॉर्म मीन्स झड़, साइक्लोन्स मीन्स बात्या, फॉरेस्ट फायर मीन्स वन में जो आग लगता है, एंड मूविंग ग्लेशियर्स जो बर्फ जमाट होके जो सीढ़ा, बर्फ सीढ़ा या बर्फ खंड रहता है, वो जब
मूव करता है तो डेंजर होता है, तो ग्लेशियर मूव करने से नुकसान हो सकता है। तो इसका बारे में वो सावधान करते हैं आदमी लोग को। कौन? वेदर सैटेलाइट, ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये जो पानीपात डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल मतलब पानीपात। कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्रोवाइड सर्विस सच एज टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। हम लोग जो टीवी में सीरियल देखते हैं, जो टीवी में न्यूज़ देखते हैं, फिल्म देखते हैं, वेरियस प्रोग्राम देखते हैं टेलीविजन में, तो ये सब सैटेलाइट के द्वारा संभव होता है। क्या सैटेलाइट? कम्युनिकेशन सैटेलाइट विच इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। So these are used services such as television broadcasting, mobile phone communication, internet servicing and navigation। तो टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट जो होता है, हम लोग शो देखते हैं, मोबाइल फ़ोन में जो हम बात करते हैं, बात सुनते हैं, इंटरनेट सर्विस में तरह तरह का यूजेस हम यूज करते हैं, और नेविगेशन करते हैं, जो जैसे अमेरिकन जीपीएस सिस्टम है, वैसे हमारा यहाँ का सिस्टम का थ्रू से हम नेविगेट कर सकते हैं, जो चीज़ों को गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे सारे चीज़ जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट द्वारा संभव होता है। सो कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्रोवाइड सर्विसेज सच एज टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, मोबाइल फोन कम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस एंड नेविगेशन। इसको याद रखना है। एंड लास्ट में साइंटिफिक सैटेलाइट, और क्या है? साइंटिफिक सैटेलाइट है। These are used for conducting scientific research and space exploration to expand our understanding of the universe। हमारा यूनिवर्स का ऊपर जानकारी जानने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए साइंटिफिक सैटेलाइट्स कंडक्ट करता है साइंटिफिक रिसर्च। So the artificial satellites in the name of scientific satellites conduct scientific research and space exploration to explore space को कैसे जानने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, एंड एक्सपैंड आवर अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंगली अबाउट द यूनिवर्स का बारे में हमारा जो ज्ञान को बढ़ाने के लिए और स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए ये साइंटिफिक रिसर्च करता है साइंटिफिक सैटेलाइट। अच्छा, आर्यभट्ट वाज इंडियाज फर्स्ट साइंटिफिक सैटेलाइट लॉन्च इन 1975। 1975 में एक सैटेलाइट आर्यभट्ट वो लॉन्च हुआ था। Since then India has launched a number of other satellites that include Chandrayaan-1 launched in 2008 and Mars Orbiter mission launched in 2013। अच्छा, ये आर्यभट्ट का बाद, आर्यभट्ट तो 1975 में लॉन्च हुआ था फर्स्ट सैटेलाइट। उसका बाद बहुत सारा सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किया। उसमें चंद्रयान-1 लॉन्च हुआ था। उसमें से जितना हुआ था उसमें से प्रमुख है चंद्रयान-1 जो कि 2008 में लॉन्च हुआ था, और मार्स ऑर्बिटर मिशन ये अनदर सैटेलाइट, साइंटिफिक सैटेलाइट जो कि 2013 में 5 साल के बाद लॉन्च हुआ था। तो 1975 में आर्यभट्ट लॉन्च हुआ, चंद्रयान-1 लॉन्च हुआ था 2008 का 5 साल के बाद मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013 में लॉन्च हुआ। इंडिया है 15 ऑपरेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, 15 टू ऑपरेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो कि ऑपरेशनल है, काम कर रहा है। तो इंडिया है 15 ऑपरेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट कंसिस्टिंग ऑफ द इनसैट एंड जीसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का ये दो सीरीज है, इनसैट हम सुने हैं, सिमिलर जीसैट भी है। ये दो सीरीज को लेके कम्युनिकेशन सैटेलाइट 15 टू ऑपरेशनल है। देन नाव आईसी जिसको बोलता है नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टिलेशन, नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टिलेशन, उसको नाव आईसी बोल के शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो नाव आईसी या नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टिलेशन इज एन इंडिजिनियस सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम डेवलप बाय इंडिया। इंडिया का द्वारा ये एक इंडिजिनियस नेविगेशन सिस्टम डेवलप हुआ था जिसको नाव आईसी या नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है। सो नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन और नाव आईसी इज
इंडिजिनियस, ये स्वतंत्र सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम इंडिया ने खुद अपना प्रजुक्ति ज्ञान कौशल दौरान तैयार किया, जो तकनीक डेवलपमेंट का दौरान ये सृष्टि किया है, which can be compared to the GPS of the United States। यूएस का जो जीपीएस हम बोलते हैं जीपीएस क्या है? ये एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम अमेरिका का। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जैसे जीपीएस है वैसे इंडिया में नावाईसी है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ द सैटेलाइट, जो नावाईसी इसमें सैटेलाइट कितना है? IRNSS IA, IRNSS IB, IRNSS IC, IRNSS ID, IRNSS IE, IRNSS IA, IRNSS IG, IRNSS IH and IRNSS II। तो IRNSS IA से IRNSS II कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 satellites are of नावाईसी या नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, जो कि एक इंडिजिनियस सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम इंडिया का द्वारा तैयार हुआ, which can be compared to the GPS of United States, are consisting of these 9 types of satellites, that is IRNSS IA to IRNSS II। So students, today we have completed this artificial satellites and natural satellite, then solar eclipse and lunar eclipse. Lunar eclipse are of two types, like full complete lunar eclipse and partial lunar eclipse. Total lunar eclipse and partial lunar eclipse. Similarly, solar eclipse is consisting of total solar eclipse and partial solar eclipse. So we have studied about the eclipse, lunar eclipse, solar eclipse, total lunar eclipse, partial lunar eclipse, total solar eclipse, partial solar eclipse, then satellites, natural satellites and artificial satellites. Again, artificial satellites is of weather, consisting of weather satellites, communication satellites and scientific satellites. Weather satellites is required for collecting information towards weather. If the meteorological department receives the information from the weather satellites and warns us against floods, storms, cyclones, forest fires and moving glaciers. Similarly, communication satellites help us to see our television through broadcasting, then mobile phone usage due to mobile phone communication, then internet service and navigation. Last but not the least, the scientific satellites are of many kinds. Aryabhatta was the first, India's first satellite in 1975. 2008, Chandrayaan-1 launched. In 2013, Mars orbiter mission launched. Similarly, NAV-IC is similar to the GPS of US. NAV-IC is navigation with Indian constellation, which is an indigenous satellite-based navigation system developed by India individually, and it consists of satellites IRNSS IA to IRNSS II, 9 satellites. Okay, thank you.